غزہ میں بڑا جانی نقصان اٹھانے کے بعد اسرائیلی فوج نے خان یونس میں حملے تیز کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں قائم النصر اسپتال پر شدید گولہ باری کی اور مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں تعداد 240 ہو گئی۔ اس کے علاوہ گلیوں اور مکانوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ شدید جھڑپوں میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کا جدید ترین ڈرون طیارہ میٹرک 600 مار گرایا اور کئی ٹینک اور بلڈوزر تباہ کر دیے۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات بھی نشانے پر آ گئے ہیں۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات بھی نشانے پر آ گئے۔ مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات نے بھارت کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی۔ جس سرزمین پر اکثریت عقیدے سے ڈر کے رہتی ہے، وہاں تاریخ اور انسانیت دونوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ جہاں مذہب سیاست میں شامل ہو جائے، وہاں انسانوں کی فلاح کی بجائے تقسیم کا نوحہ لکھا جاتا ہے۔ رام مندر کے افتتاح سے امریکہ نے غزہ میں علاقائی تبدیلیوں کی مخالفت کر دی۔ امریکہ نے غزہ میں بفر زون بنانے کی اسرائیلی تجویز کی مخالفت کی اور اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو 7 اکتوبر جیسا حملہ دوبارہ ہونے سے روکنے کا حق ہے، لیکن جب غزہ کی مستقل حیثیت کی بات آتی ہے تو ہم بہت واضح ہیں۔ اینٹنی بلنکن نے مزید کہا کہ ہم اس کی سرزمین پر تجاوزات نہ کرنے کے بارے میں واضح ہیں اور نقل مکانی کرنے والوں کی گھروں کو واپسی کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنانا پسند کروں گا۔ برطانوی میڈیا رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ملک میں چہرے بدلتے ہیں لیکن پالیسیاں وہی رہتی ہیں۔ عام انتخابات کی شفافیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ شفافیت کے سوالات 2024 کے انتخابات پر منڈلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں۔ کوئی بھی آپ کی ذاتیات کی سیاست نہیں سننا چاہتا۔ انسداد دہشت گردی کورٹ لاہور میں اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں لیگی رہنما مریم اورنگزیب حاضری کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں نیہا پروین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم دم تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے تاریخی خطاب۔ بولے، پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اصلاح کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت اور تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم اور ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ پولیس اور رینجرز کا کچے میں مشترکہ آپریشن، 2 مغوی بازیاب کرا لیے گئے۔ پولیس کا کچے میں آپریشن کے دوران 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس اور رینجرز نے مغوی غلام رسول بکرانی اور منصور پٹھان کو بازیاب کرایا۔ دوران آپریشن ڈاکوؤں نے پولیس پر راکٹ لانچر فائر کیے۔ پولیس نے بھی بھرپور جواب دیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا۔ سمندری میں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید خان کی کارنر میٹنگ، سابق ناظم حاجی عارف جاوید افضال گجر نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ رانا فاروق سعید خان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمپین بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ اور ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر رانا بلال فاروق، رانا عمر فاروق سمیت کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سابق وفاقی وزیر رانا فاروق سعید خان کا کہنا تھا کہ صرف وعدے نہیں، کام کرتا ہوں۔ جیت کر حلقے کے مسائل حل کرنا اور دیہی علاقوں میں گیس کا وعدہ پورا کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شورکوٹ میں جماعت الصالحین پاکستان کے ضلعی صدر اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام چلانی نے بار روم احمد پور سیال کا وزٹ کیا اور تحصیل بار ایسوسی ایشن احمد پور سیال کے منتخب صدر اور جنرل سیکریٹری سے ملاقات کی۔
इस हवाले से बता रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। जिलाई सदर जमातुस्सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बार रूम अहमदपुर सियाल का विजिट किया। उन्होंने नौ मुंतखब सदर तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल नफर हुसैन खान बलोच और जनरल सेक्रेटरी मलिक सफीर हुसैन अवान से मुलाकात की और उन्हें फूलों के हार पहनाकर उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं खान साहब को और मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जिसने पाकिस्तान बनाया क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी वकील थे। ये वकील जो हैं उन वकील के सिपाही हैं और आवाम की खिदमत पहले भी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मज़ीद फिर भी खिदमत करते रहें। सदर बार और जनरल सेक्रेटरी ने मलिक गुलाम जिलानी का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार की तरफ से और अपने भाई मलिक सफ़ी हुसैन अवान की तरफ से जिलानी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में हमारे लिए वक्त निकाला और इंशाल्लाह जो बात उन्होंने की है, हम इंशाल्लाह अवाम के जज्बात, अवाम की भरपूर हिमायत करेंगे, उनके ख्यालात की तर्जुमानी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक गुलाम जिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से कबल भी अपनी नेक तमन्नाएँ, अपनी दुआएं, अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखी। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और मलिक साहब ने जो अपना एक मसला, अवामी मसला जो उजागर किया है और लोगों के जो दरीना मसाइल हैं इस बार और बेंच के मुतल्लिक़, इंशाल्लाह मैं अपने सदर और दीगर कैबिनेट के साथ मिलकर वो लोगों के मसाइल ज़रूर हल करेंगे और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट और मलिक सफीर हुसैन ऐवान एडवोकेट ने अहमदपुर सियाल को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से मुंसलिक करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाने के आज़म का इयादा किया। चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर, कोहिनूर न्यूज़, शोरकोट। जिलाई सदर जमातुस्सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस DHQ अस्पताल पाकपतन में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी यकीनी बना दी गई। रिपोर्ट करेंगे तारिक चिश्ती। डिप्टी कमिश्नर मैडम सादिया मेहर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन की एमरजेंसी ट्रामा सेंटर और फार्मेसी का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब की ये जो एक काविश है कि हेल्थ की सहूलतों को हमने बेहतरीन अंदाज में अपनी आवाम तक पहुंचाना है। नई फार्मेसी है जो कि हमने सेंट्रलाइज्ड फार्मेसी यहाँ पे क्रिएट की है। इसी तरह से हमने फैसिलिटेशन काउंटर जो है वो बनाए हैं ताकि हमारी आवाम जो है उसको सहूलत मुयसर हो सके, जिसमें हमने सिक्योरिटी के काउंटर भी लगाए हैं, ट्राइएज काउंटर लगाया हुआ है, हमने रेस्क्यू 1122 का है ताकि जो पर्सन भी आता है वो देयर एंड देन डायरेक्ट उसको एक्सेस मिले और बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल के अंदर आके रश वाली जगहों पे इंतजार करे, उसको फिल फॉर जो है वहाँ से मदद मिल सके। राउंड दी 24/7 राउंड दी क्लॉक ये काम करेगा और इसमें भरपूर जो है वो सेहत सहूलत की जो सहूलियात हैं वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रामा सेंटर के क़याम से हादसात का शिकार होने वाले मरीजों के एमरजेंसी ऑपरेशन करके इनकी जानें बचाई जा सकेंगी। हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है वो फंक्शनल हो गया है। अब हमारी जो ट्रॉमा पेशेंट हैं और सर्जरी के पेशेंट हैं वो अलग से सेग्रीगेट हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से DHQ अस्पताल की एमरजेंसी में सेहत की जदीद तरीन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं ताकि एमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों को बरवकत तिब्बी इमदाद दी जा सके। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज़, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर लेस्को हुकाम की जानिब से दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को तकर्रुरनामे देने की तकरीब हुई। तकरीब में 20 मुलाजमीन के वर्सा जिनमें खातीन भी शामिल हैं को मुलाजमत के तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं अमजद हाशमी की इस रिपोर्ट में। लेस्को हुकाम की जानिब से दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमिन के बच्चों को तकर्रुरनामे देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 20 मुलाजमिन के वर्सा जिनमें खवातीन भी शामिल है तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। जिन पोस्टों के लिए तकर्रुरनामे तकसीम किए इनमें अकाउंट असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, UDC, लाइन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, SSO 2, LDC असिस्टेंट लाइनमैन,
اور نائب قاصد کیڈر شامل ہیں۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد دادر کا کہنا تھا کہ لیسکو اپنے ملازمین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے۔ لیسکو میں دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر HR نعمان غفور، چیف انجینئر T&G ظفر اقبال اور مینیجر HR ہما چیمہ نے بھی شرکت کی۔ ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ پاکستان سرزمین پر بھارت کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت خفیہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد قوتوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے بھارت بلوچستان میں مخصوص دہشت گرد فورسز کو مالی مدد اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ بھارت خطے میں علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے بلوچستان میں مقامی لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ دسمبر 2023 میں بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز احمد بنگلزئی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں خفیہ طور پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ مارچ 2016 میں بلوچستان سے بھارتی خفیہ جاسوس کلبھوشن یادو کو در اندازی کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ دی ہندو نیوز کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر ماضی میں ہندوستان کے ہسپتالوں میں اکثر جعلی شناخت استعمال کر کے علاج کی کوشش کرتا رہا۔ چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹریٹجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جی ہیلن نے گلوبل ٹائمز کو بتایا ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کے حوالے سے مسلسل دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق بھارت نے عالمی سطح پر پاکستان کی تشخیص کو خراب کرنے کی مذموم کوشش کی۔ بھارت کا پاکستان میں در اندازی کا مقصد سرمایہ کاری کو روکنا اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرنا ہے۔ بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا۔ اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے۔ آواران میں 2014 میں ایک ہی تنظیم نے 155 ایسے محسوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا۔ انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ I am Commander Kulbhushan Jadhav. My cover name was Hussain Mubarak Patel. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. اور ناظرین PTI کی مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی قوانین نے PTI کا پلان C شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ قوانین کے مطابق آزاد امیدوار انتخابات کے بعد پارٹی میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ الیکشن رولز 2017 کے تحت PTI حمایت یافتہ امیدواروں کو پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر رپورٹر سید عمر گردیزی سے۔ جی عمر گردیزی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، انتخابی قوانین نے پاکستان تحریک انصاف کا پلان سی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ آزاد امیدوار جو ہیں وہ انتخابات کے بعد پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو الیکشن کے بعد منتخب ہونے والے آزاد امیدواروں کو ایک چھتری تلے جمع کرنے کا پلان سی شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ الیکشن رولز 2017 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ PTI کا پلے کے نشان پر عام انتخابات لڑنے کا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی ایک ذہن اسکیم جو تھی وہ تیار کی گئی تھی اور اسے PTI کا پلان B کہا گیا تھا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سربراہ اختر اقبال ڈار نے لاہور میں اجلت میں منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جاری کیے گئے ٹکٹوں سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد PTI نے ایک پلان سی بنایا جس میں زیادہ تر توجہ انتخابات کے بعد کے منظرنامے پہ تھی۔ یہ پلان اسی خیال کے گرد گھوم رہا تھا کہ آزادانہ طور پر منتخب ہونے والے PTI کے حمایت یافتہ امیدواران انتخابات کے بعد پارٹی میں شامل ہوں گے یا نہیں، اور اس سے PTI اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے جو دعویٰ کر سکے گی۔ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن میں جیتنے والی جنرل نشستوں کی تعداد پر کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ پلان سی کے بارے میں تفصیلات کے کچھ حصے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل سلمان اکرم راجہ نے ایک گفتگو کے دوران بھی بتائے۔
ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ریٹرننگ افسران کے سامنے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین کے تحت کسی بھی آزاد امیدوار کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا۔ الیکشن رول کے تحت کسی بھی آزاد امیدوار کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا، کیونکہ پارٹی کو انتخابی نشان ہی الاٹ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کا جو رولز ہے 2017 کا عمر پلیز یہاں پر تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ کیا یہ رولز جو ہیں صرف پی ٹی آئی پر ہی اپلائی ہوتے ہیں، یعنی صرف پی ٹی آئی کے پاس چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا آزاد امیدوار جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی میں ہی شامل نہیں ہو سکیں گے یا دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے، تو بطور پارٹی تو اس وقت تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، لیکن ایک جماعت جو کہ اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑتی ہے پھر وہ اسمبلی میں جاتی ہے، اسے اس جماعت کی حکومت کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے۔ تو جو آزاد امیدواران ہوں گے وہ کسی بھی ایسی جماعت کا حصہ تو بن سکتے، جیسے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی دوسری جماعت اس کا حصہ بن سکتے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ بطور انتخابی نشان پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکی۔ اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے لاگو نہیں ہوتا، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور الیکشن رول 2017 کا جو ہے اس میں 92 سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی تقسیم کا جو فارمولا فراہم ہوتا ہے اس تمام کے لیے یہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے تو محروم ہوگی، لیکن بطور جماعت جو وہ آزاد امیدواران ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سلمان اکرم راجہ کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 2 رکنی جو بینچ ہے سلمان اکرم راجہ کی درخواست میں انہوں نے بات کی، دوران درخواست موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو الیکشن لڑنے کی ٹکٹ جاری کیا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن لڑنے والے امیدوار بیلٹ پیپر پر پارٹی کا نام لکھا ہوتا ہے جس میں شمولیت کرنا چاہتا ہے، تو وکیل درخواست نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر آزاد امیدوار کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے۔ الیکشن کے 3 دن بعد کسی بھی پارلیمانی پارٹی میں شمولیت کرنا ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی کے نامزد امیدواروں کے بیلٹ پیپر پر آزادانہ امیدوار نہ لکھے، پارٹی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت شکریہ عمر اویس گردیزی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات بھی نشانے پر آ گئے ہیں۔ مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات نے بھارت کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی ہے۔ جس سرزمین پر اکثریت اقلیت سے ڈرنے لگتی ہے وہاں تاریخ اور انسانیت دونوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ جہاں مذہب سیاست میں شامل ہو جائے وہاں انسانوں کی فلاح کی بجائے تقسیم کا نوحہ لکھا جاتا ہے۔ رام مندر کے افتتاح سے بھارتی مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایودھیا نہ صرف ہندو بلکہ مسلم تہذیب اور ثقافت کا بھی اہم مرکز ہے۔ ایودھیا میں جگہ جگہ مساجد، مقبرے، درگاہیں اور قدیم قبریں اور اس شہر میں مسلمانوں کی صدیوں سے آباد کاری کا پتہ دیتی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایودھیا میں 55 مساجد، 22 قبرستان، 22 مزارات اور 11 امام بارگاہیں موجود ہیں۔ رام مندر کے حق میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انتہا پسند ہندو مافیا کی نگاہیں مسلمانوں کے قبرستان پر لگی ہوئی ہیں۔ ڈی ڈبلیو رپورٹ کے مطابق ایودھیا وقف بورڈ کے صدر محمد اعظم قادری کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے کئی قبرستانوں اور وقفی جائیدادوں پر قبضہ مافیا ہندو تسلط جما چکا ہے۔ رام مندر کی مزید توسیع کا امکان ہے جس کے زد میں مسلمانوں کے بہت سے قبرستان اور مقبرے آ سکتے ہیں۔ متنازع رام مندر کی تعمیر میں مذہبی قوم پرستی کی نئی بنیاد رکھتے ہوئے بھارت کی سیاست کا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ مسلمانوں کی زمینوں اور قبرستان پر تیزی سے قبضہ کیا جا رہا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے بعد ایودھیا کے مسلمان روزگار سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ایودھیا سے مسلمانوں کے نشانات مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں پر پہلے بھی ظلم جاری تھا، مگر انتہا پسند مودی سرکار کے آنے کے بعد یہ ظلم اب بربریت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مودی سرکار جو دنیا بھر میں سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، اس کی اصل شکل یہ ہے کہ سوائے ہندوؤں کے بھارت میں کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں ہے۔
जिस दिन से फैसला आया है, फैसले के बाद से यहाँ पे भूमाफियों की निगाहें सिर्फ कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टियों पर टिकी हुई हैं। कई ऐसी कब्रिस्तान, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जिस पे लोग कब्जा कर चुके हैं। कब्रिस्तान की ज़मीनें महफूज नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ मतलब कहीं न कहीं कोई ये कब्जा कर रहा है, कहीं वो कब्जा कर रहे हैं। हम इसको मेयर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी ने डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और चेयरमैन करंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा अल्लाह वाला टाउन UC2 में TMC गर्ल्स कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन करंगी टाउन जरीन एवान, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जानी मेमन, UC8 के चेयरमैन अहमद रजा, वकार लोधी टाउन के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आकिब की इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी ने डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और चेयरमैन करंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा अल्लाह वाला टाउन UC2 में TMC गर्ल्स कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा वाइस चेयरमैन करंगी टाउन जरीन अवान, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जानी मेमन, UC8 के चेयरमैन अहमद रजा, वकार लोधी टाउन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची के बड़े हमें बताते हैं नियत साफ हो तो काम आसान होते हैं। मुझे खुशी है कि TMC की ये ज़मीन कब्जे से बच गई। हमारे तलबात के लिए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पहले खाली जगहों पर कब्जे हो जाया करते थे, लोगों की ज़रूरत के लिए काम कर रहे हैं। इस कॉलेज में सेकेंडरी स्कूल भी बनाए गए। अब कराची में दहशत और खौफ का राज नहीं है। ये माएँ बहनें पहले बाहर नहीं निकल सकती थी, आज इस शहर में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती है। कराची वालों ने खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है। ये लोग 40 साल इस शहर में मुबीर सर इक़्तिदार है, मगर इन लोगों ने कराची के लिए कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने यहाँ तरक्याती काम तसल्सल के साथ करा रही है। हम एक तरह का रोना नहीं रो रहे। मोहम्मद आकिब। PK3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम शाह ने फताहपुर में मदरसा प्रोग्राम से खिताब किया और डोर टू डोर कैंपेन मुहिम भी चलाई। रिपोर्ट मुअत्तर अली अपर सवाद। पाकिस्तान पीपल पार्टी हल्का PK3 के नामजद उम्मीदवार हकीम शाह ने मदरसा रियाजुल जन्ना लिल बनात के ख़त्मुल कुरान व ख़त्मुल बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में शिरकत की। नामजद उम्मीदवार ने ख़त्म बुखारी शरीफ के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मदीना पाक में गुजारा है और वहाँ पर इलाके से आए हुए लोगों की दिल से खिदमत की है। सियासत में आने का मकसद भी मेरा गरीब लोगों की खिदमत है और यही जज्बा लेकर मैं सियासत के मैदान में आया हूँ। कहा कि मैं खुद भी दीन इस्लाम सीखने का एक अदना शागिर्द हूँ और मुझे उलमा इकराम की दुआओं और शफकत की ज़रूरत है। इस मौका पर मदरसा के मुहतमिम मौलाना कारी रियाजुद्दीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मदरसे का ताल्लुक अशाअतुल तौहीद वल सुन्ना से है, जो मुकम्मल गैर सियासी है। हम देखते हैं कि जो हमारे मदरसे के साथ मुखलिस है, हम उनके मुखलिसाना खिदमत का दुनिया में बदला देने के लिए वोट देकर इसके एहसान का बदला चुका देते हैं। इज्तिमा से मौलाना सैयद अकबर, मौलाना शेरुर्रहमान, मौलाना सैफुल मलूक, मौलाना शुएब और मेहमान खसूसी मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ ने खिताब किया। प्रोग्राम के बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने डोर टू डोर वोट मुहिम भी की। शेर अफजल खान मरवत ने प्लान C का आगाज लकी मरवत से कर लिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बैरिस्टर शेर अफजल खान ने सूबाई असम्बली के 3 उम्मीदवारों से हल्फ ले लिया। 3 उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ से वफादारी का हल्फ लिया। तारिक सईद खान का कहना था, इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद PTI के फैसलों का पाबंद रहूंगा। कोहाट प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात 32 मेंबरान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। हकपरस ग्रुप के उम्मीदवार नूर मोहम्मद बंगिश 23 वोट लेकर 7वीं बार सदर मुंतखब हो गए। मद मुकाबिल हाशिम जमान 8 वोट ले सके। फैसल नदीम जनरल सेक्रेटरी, कामरान बंगिश नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद बासित गिलानी, फाइनेंस सेक्रेटरी कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे सैयद फैजान शाह बनोरी, राब्ता सेक्रेटरी अलीम हैदर मुंतखब हो गए। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में फरहान अहमद बंगिश सदर और खालिद मकी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद प्रेस क्लब कोहाट में जश्न मनाया गया और सहाफियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सियालकोट में उठियां स्टाफ डस्का से गुजरांवाला रोड पर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 19 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस सियालकोट से फैसलाबाद जा रही थी। धुंध के बायस यू टर्न लेते हुए
ट्रक से टकरा गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। अब जदीद सीसीटीवी कैमरों की मदद से शरपसंद तकरीबकार और जराइम पेशा अफराद की निगरानी में मदद मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि खानेवाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब जदीद सीसीटीवी कैमरों की मदद से शरपसंद तकरीबकार और जराइम पेशा अफराद की निगरानी में मदद मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं कि खानेवाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। अब जदीद सीसीटीवी कैमरों की मदद से शरपसंद तकरीबकार और जराइम पेशा अफराद की निगरानी में मदद मिल सकेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने डीपीओ राना उमर फरूक के हमरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट खानेवाल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर भर के मुख्तलिफ चौकों और अहम पॉइंट्स पर हाई क्वालिटी के CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे मुजरमों की नकलो हरकत, जराइम पेशा अनासिर की निगरानी, शरपसंद और तकरीबकार अनासिर को मुसलसल मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके फाल करने का सेरा होनहार पुलिस ऑफिसर के सर है। खानेवाल सेफ सिटी है जो कि एक इंटरनेशनल और एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से उसको बनाया गया है। इसका म्यार किसी भी इंटरनेशनल सेफ सिटी से कम नहीं होगा। आपने खुद इसमें देखा है कि जो केसेस ट्रेस हुए हैं उनकी आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दिखाई गई, रियल टाइम दिखाया गया। इसके लिए इसके अलावा जितने भी हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं, आपने ये रिक्रिएशन रूम कह लें या इसको ट्रेनिंग रूम कह लें, जो हमारे ब्रांचेज हैं उनका इफ्तिताह किया है। बेसिकली ये तमाम का तमाम पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जो हमारा एक म्यार है, जो खानेवाल पुलिस ने सेट किया है, उमर साहब ने सेट किया है, उस म्यार से बहुत आगे की चीज़ों को हम कर रहे हैं और तमाम के तमाम ये पब्लिक के लिए हैं। RPO मुल्तान ने DPO ऑफिस में जदीद तर्ज पर तामीर किए गए कमांड एंड कंट्रोल रूम और पुलिस ब्रीफिंग रूम का भी इफ्तिताह किया। इन्होंने DPO राना उमर फरूक और इनकी टीम की काविशों को सराहा और मुबारकबाद पेश की। डहर की रीति लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। डाकू की शनाख्त बरकत अली के नाम से हुई। मुलजिम गिरफ्तार। डाकू चोरी, मोटरसाइकिल छीनना और चोरी करना और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर संगीन नौयत के मुकदमात में घोटकी पुलिस को इंतहाई मतलूब था। SSP घोटकी के मुताबिक फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क और बाहन बेली की जानिब से बॉयज़ डिग्री कॉलेज सांगन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और सियासी जमातों के मंशूर पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं आतिफ आराई की इस रिपोर्ट में। अमीर बख्श बुर्दी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से बात करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ग्रैंड अलायंस पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि इंतखाबात शफाफ और पुरअमन तरीके से करवाए जा सके। उन्हनि में जे उते असांजे ही सिंध जे माण्हुनि खे इहे ज़मीन 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ एकड़ करे ॾिनो वञे हा त असांजे सिंध में वॾी ख़ुशहाली अचे हा। अॼु खां 10 साल 20 साल पहिरीं सिंध खे दुबई सॼो वेंदो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क फाफन की तरफ से एक बेहतरीन सांगड़ वालों के लिए प्रोग्राम अरेंज किया गया था। हम जो है फाफन की काविशों को, असलम साहब और अमीर बख्श बुर्दी की काविशों को सराहते हैं कि सांगड़ में इन्होंने एक फोरम हमें मुहैया किया जिसपे हम अपनी बात कर सकें। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन पुरअमन और धांधली से, करप्शन से पाक होंगे। हम शुक्रगुजार हैं फाफन की तरफ से अमीर बख्श बुर्दी ने हमें यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये सिंध के शऊर आवाम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है जिसमें हमने शिरकत की और हम ये अपना एजाज़ समझते हैं कि हम इस लायक हमें समझा गया और इस प्रोग्राम में। CEO असलम मीरबर ने भी इलेक्शन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। फाफन के बारे में बताया कि फाफन एक समाजी तंजीम है जिसमें 500 मुख्तलिफ तंजीमें, जबकि तकरीब से सूबाई सदर ह्यूमन राइट्स गुलाम कदर उन्नड़ अजीज़ुल्लाह ने भी खिताब किया। अमीर बख्श बुर्दी, सगीर राजपूत, आतिफ आराई, रोजीना मकसूद, असलम मेमन, हसन लांडर, मजीद राहो समेत दीगर ने शिरकत की। जैकबाबाद कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर उम्मीदवार सरगर्म है। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी है।
N190 पर मोहम्मद मियां सोमरू का शहर के बेशतर इलाकों में कॉर्नर मीटिंग और जलसे जारी हैं। उम्मीदवारों ने शहर भर में पैनाफ्लेक्स और झंडे आवीजा कर दिए हैं। डीपीओ खुशाब के जोहराबाद दफ्तर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीओज और एसएचओज की मीटिंग। दौरान मीटिंग 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले जनरल इलेक्शन के बारे में हिदायत जारी की गई कि इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश, आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उस पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजीद कहा कि शरपसंद अनासिर के कानून के शिकंजे में लिया जाएगा और साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुलिस अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरगोदा के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा तहसील साहिवाल में कार्रवाई। एक फूड पॉइंट को काम करने से रोक दिया जबकि एक ट्रेडर को 50,000 का जुर्माना आयद किया। एक बेकर्स यूनिट को खुला रंग इस्तेमाल करने और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया जबकि एक ट्रेडर यूनिट को एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स की फरोख्त पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था शहरी अशिया खुरनोश की एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें। नारंग मंडी के N113 से उम्मीदवार नुमान खालिद, PP 136 के उम्मीदवार MPA चौधरी रमजान मुस्तफा ने TLP की इंतखाबी मुहिम का कामयाब बनाने के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। TLP को कामयाब करवाने के अज़म का इजहार किया गया। शदीद सर्दी में भी रात गए तक जलसे की कार्रवाई जारी रही। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कमर गुलाटी की रिपोर्ट। हल्का NA113 में मियां मोहम्मद नमान एडवोकेट और हल्का PP 136 में TLP के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमज़ान सेहौल की जानब से मरकज़ी दफ्तर का शानदार इफ्तिताह किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवारों का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए TLP को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि इंतखाबी निशान स्क्रीन पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं। हम अल्लाह और इसके रसूल का कानून नाफिज करेंगे। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। तारीख से पाकिस्तान 57 इस्लामी मुमालिक से वाहिद तो इस्लामी मुल्क है जेड़ा नजरिया इस्लाम ते बने हैं। इंदे तो इलावा कोई इस्लामी मुमालिक भी नजरिया इस्लाम ते नहीं बनया। ते आज जो साडे हालात ने पाकिस्तान दे जो हालात ने साडे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कोई दलील नहीं। जिस साइड ते देखो नेरा ही नेरा है। साडी कौम साडे आने वाली नस्ल आज जिस जगह ते खड़ी है कि साडे हाथ लम्हे फिक्री है। इकबाल दा एक शेर है, वाह नाकामी वाह नाकामी। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने मंडी बहाउद्दीन के देही इलाके रेड़का बाला में रूरल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, DPO रजा सफदर काजमी, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहले रेड़का बाला की जानिब से इस हुकूमती इकदाम को बेहद सराहा जा रहा है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि निगरान हुकूमत डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की तरह रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी जदीद सहूलियात की फराहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने समेत दीगर मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सूबे भर में अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए अस्पतालों और मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। खानका डोगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में मुलविस आसिम उर्फ अस्सू डकैत गैंग को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। कब्जे से लाखों रुपए नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। शहरों ने डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर DSP आका महमूद खान, SHO मलिक अजहर और ASI बशीर डोगर की कारकर्दगी को सराहा है। और अब आपको बताएं कि पाकपतन में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बाप ने बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश घर में दफन कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करने के कुछ ही दिन बाद जो सलीम था, जो अगवा हुआ था, उसकी लाश करीबी रोड के किनारे से मिली, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया। मुद्दईयान ने
3 अफराद को नामजद किया जिनको गिरफ्तार करके हस्ब ज़ाब्ता तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। दौरान तफ्तीश वो तमाम मुल्ज़िमान बेगुनाह पाए गए। जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो पता चला कि सलीम को उसके वालिद वजीर ने घरेलू झगड़े की बिना पर कत्ल किया और लाश को घर के सेन में दफन कर दिया, और इस काम में उसका भाई मकतूल का भाई मौज़म भी अपने वालिद के साथ शामिल था। और कुछ दिनों बाद जब अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद उन्होंने लाश सेन से निकालकर करीबी सड़क पर फेंक दी। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इसको चकबेदी थाने को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई। मतीन नामी शख्स ने कहा कि उसके भाई सलीम। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मियां चन्नू बाईपास पर लाहौर से कराची जाने वाला लोडर ट्रॉलर तेज रफ्तारी से बेकाबू हो गया। ट्रॉलर पर लदा हुआ कंटेनर कार पर उलट गया। हादसे में कार में सवार बहन भाई जाँ बहक हो गई। शनाख्त शहनाज बीबी और इफ्तिखार अहमद के नामों से हुई है। 2 घंटे की कोशिश के जाँ बहक अफराद को गाड़ी से निकाला गया। जाँ बहक होने वाले अलीमदीन कॉलोनी मियां चन्नू के रिहायशी थे। ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। शुजाबाद में जलालपुर खाकी ईंटों के भट्टे पर ट्रक हैक करते हुए 11,000 केवी तारों से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रक कंडक्टर झुलस कर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 30 साल नियाज शाह के नाम से की गई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करें लुडन से, आपको बताएं कि NA 157 में दौलताना बरादरी का पावर शो। मियां अफजल दौलताना ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सैयद साजिद सलीम मेहदी, मियां इरफान दौलताना, मलिक नौशहर नंगरयाल पूरे पैनल की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। सैयद साजिद सलीम मेहदी, मियां इरफान दौलताना और मलिक नौशहर नंगरयाल का कहना था कि लुडन इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। एक दफा फिर लुडन तरक्की की राह पर गामजन होगा। हम दौलताना बरादरी और दीगर दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया। हर सूरत उनका एतमाद पर पूरा उतरेंगे। इस मौका पर मियां शाहिद खान दौलताना, मियां शाहिद साहबजादा, मियां जहांजेब दौलताना भी मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का जंट का दौरा। नौमुंतखब सदर मलिक सज्जाद अहमद ने इस्तकबाल किया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार ने जंट बार के नौमुंतखब सदर सज्जाद अहमद खान और नायब सदर अजमत खटक, सेक्रेटरी जनरल जुल्करनैन अली, जॉइंट सेक्रेटरी फैसल हयात और फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ियाउल हक को मुबारकबाद दी। बशारतुल्लाह एडवोकेट ने कहा कि मैंने हमेशा जंट बार को अपना दूसरा घर समझा है। आपने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी जिसे हमेशा याद रखूंगा। जंट बार के लिए जल्द पंजाब बार से फंड मंजूर करवाऊंगा। वाइस चेयरमैन ने जंट बार के लिए लॉ की किताबों का सेट भी मलिक सज्जाद अहमद एडवोकेट के हवाले किया। इस मौके पर मेहमान को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अली सावल की खुशाब में जबरदस्त एंट्री। नई सोच, नया चेहरा, नया इंतखाब, बदले का खुशाब के साथ खुशाब शहर में जबरदस्त एंट्री की है और अवाम के दिल जीत लिए। मोहल्ला पीर जाफर रोड में मुतादिद बरादरियों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर तालिब हुसैन, अब्दुल खालिक, मियां अजहर, प्रिंस तैयब, मोहम्मद इमरान खान, तसव्वुर अब्बास, उमैर अली, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इस्माइल, नसीर शाह शेख, कम्हार बरादरी, भट्टी बरादरी, राजा बरादरी, कसाई बरादरी ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। तकरीब में डॉक्टर गुलाम अब्बास, मुजम्मिल खान, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद बिलाल, राजा मोहम्मद करीम, राजा मोहम्मद रजा, राजा नवाज, मोहम्मद उमर इब्राहिम, मोहम्मद शमशीर, चाचा हाजी मोहम्मद सिकंदर, महमूद चूहा, फरासत चौहान और चाचा मोहम्मद रमजान, मोहम्मद खुरम कसाई ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की अंदरून सिंध कच्चे के इलाके में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शिकारपुर तहसील खानपुर के इलाके गोटशेर मोहम्मद द्रोही में डकैती, अगवा, बराए तावान, कत्ल, सहूलतकारी और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजिम चाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से SMG और एक अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 15 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। सिंध पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी में मुआवनत के लिए 20 लाख रुपए सर की कीमत भी मुकर्रर थी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस के ASI अब्दुल गनी अबड़ो के कत्ल में भी मुलविस होने का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। PP का काम आवाम के सामने है, जिसके लिए 5 से 10 साल टारगेट मुकम्मल करने के लिए चाहिए। GDA, MKM और नवाज लीग का इत्तेहाद 18वीं तरमीम और मुल्क के छोटे सूबों के खिलाफ है। सैयद खुर्शीद शाह, साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का पनु आकिल के गांव हुसैन कलोड़ में जलसे से खिताब, बोले लेबर कार्ड, किसान कार्ड, नौजवानों के लिए वजीफे देना हमारा मंशूर है।
कच्चे की जमीनें लीज करेंगे मगर जमीनों पर दरख्त लगाए होंगे जिसे मुल्क खुशहाल और सरसब्ज बन सकेगा। कच्चे के लोग खुशहाल होंगे तो क्राइम का खात्मा होगा। मठियारी में जीडीए उम्मीदवारों की मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स, जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। PSS 57 से जीडीए के उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोट और NA 216 के उम्मीदवार बशीर मेमन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। मटियारी में जीडीए उम्मीदवारों की मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स, जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया गया। PS 57 जीडीए के उम्मीदवार जलाल शाह जामोट और NA 216 के उम्मीदवार बशीर मेमन की ताजपुर, शाहपुर, यूनियन काउंसिल, पीर हाजन शाह, जाम, समू, खानपुर और दीगर मकामात पर शानदार इस्तकबाल करके ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मौके पर रहनुमाओं ने तकरीबात से खिताब करते हुए कहा है कि मटियारी की आवाम अब बेदार हो चुकी है। इस बार कई लोग मुखालिफिन से तंग आ चुके हैं और हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी यकीनी होगी। उन्होंने कहा है कि अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी हमारी ही कामयाबी का दिन है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कलात हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में यौम यकजहती कश्मीर डे, आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों समेत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कलात सैयद एहसन शाह, SP कलात बाबर मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर कलात साकिर कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर मगरेचर बरकत बलोच समेत दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हिंदुस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी को कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। आम इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम महकमों के सरबराहान अपना भरपूर किरदार अदा करें। और नाजरीन, पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ के देहात भी आजकल गुड़ की खुशबू से महक रहे हैं। गुड़ कैसे बनाया जाता है, देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से राना साजिद की ये रिपोर्ट। गुड़ बनाने का रिवायती तरीका बरसों पुराना है, जिसको किसान आज भी खुश दिली से अपनाए हुए हैं। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे बड़े बर्तन में उंडेल कर साफ किया जाता है। गन्ने के रस को आग पर कई घंटे पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर उसकी पेनियां बनाई जाती हैं। चीनी की ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत चंगी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ये बहुत लजीज है, नाल रेट बहुत सस्ता है। प्यारा गुड़ 140 रुपये मिल वेंदे, जानवरों वाला 100 रुपये मिल वेंदे। ये बहुत प्यारी चीज़ है। खुशबू और मिठास से भरपूर देसी गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। कैमरा टीम के साथ राना साजिद, कोहिनूर न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकी। रोजाना की बुनियाद पर वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। थाना सदर के इलाकों में मुख्तलिफ वारदातों में वसीम अब्बास के व्यापारी से मोटरसाइकिल और हजारों रुपए नकदी ले ली। वारदात में मोहम्मद अहमद से सदगरा मोड़ पर डाकू ने मोटरसाइकिल और हजारों रुपए नकदी छीन ली। वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। शहरियों ने आज ही पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर है नारोवाल से, जहां करतारपुर राहदारी अमन की राहदारी जो एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की दरबार साहिब करतारपुर ले आई। नवजोत सिंह सिद्धू वफ्द के हमरा दरबार गुरु नानक करतारपुर पहुंचे तो इंतजामिया दरबार ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लंगर खाने से लंगर खाया और दरबार पर माथा टेका। इंतजामिया ने नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर का विजिट करवाया। नायब अमीर जमात इस्लामी और उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने लाहौर मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लियाकत बलोच का कहना था कि इक्तदार में रहने वाली दोनों जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तालीम के मेयार को सोचे समझे मंसूबे के साथ तबाह किया गया। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी व हल्का NA 128 के उम्मीदवार लियाकत बलोच ने मरकजी दफ्तर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर इनका कहना था इक्तदार में रहने वाली दोनों जमातें एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। रुपए की कीमत और कम और बैरूनी कर्जे बढ़ चुके हैं। ज़र मुबादला कम सतह पर है। दरामदात और बरामदात समेत तजारती खसारा $9 अरब कम हो चुका है।
تعلیم کے معیار کو سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے۔ اس تباہی کی ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی سرپرستی میں اقتدار حاصل کرنے والی جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی بھرپور الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، امیدواران کارکنان بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ناکام اور نااہل جماعتوں کے مقابلے میں جماعت اسلامی کا نشان مقبولیت پا رہا ہے۔ انسانی میدان میں جماعت اسلامی کی خدمات کو لوگ سراہ رہے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر جماعت اسلامی کی سرگرمیاں قوم تسلیم کرتی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور ملکی سیاست کا دل ہے۔ طویل مدت سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی PTI لاہور پر مسلط رہے ہیں۔ چند پروجیکٹ گوا کر اب یہ قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عملی طور پر بلدیاتی نظام غائب ہے۔ گلیوں محلوں میں گندا پانی، اسٹریٹ کرائم، اسٹریٹ لائٹس اور تعلیم کا نظام سمیت منشیات بھی بڑھ رہی ہے، جس کا ذکر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، ان کی جان لیوا بل عوام کے لیے پریشان کن ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک حصہ یہ ہے کہ نہ کسی کو لاڈلا بناؤ، نہ کسی کی جمہوری حق سے محروم کرو۔ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد سختی سے کروائے۔ تشہیری مہم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ ووٹر کی خریداری ہو رہی ہے جو اچھے مستقبل کے لیے مفید نہیں۔ ہماری اپیل ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم ملک کو مشکل سے نکالیں گے۔ ہم ملکی پاسپورٹ عوام اور امیج کا باعزت مقام پر لا کر کھڑا کریں گے۔ نگراں حکومت اور اس کے پالیسی ساز نام نہاد بڑی جماعتیں فلسطین کے مسئلے پر مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ ہم انتخابی مہم کا اتحاد امت اور قومی جذبے پر لاہور مال روڈ پر 5 فروری کو ملین مارچ ہوگا۔ جماعت اسلامی انتخابی مہم پر بھی فعال ہے اور قومی مسائل کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے مستقبل کے لیے لاہور میں ترازو کو خوب پذیرائی ملے گی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن آپریشن آفس میں عمدہ کارکردگی پر پولیس افسران کے اعزاز میں تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ نے تعریفی اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں اے ایس پی گلشن راوی، احمد نصر اللہ ملک نے بھی شرکت کی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے خصوصی ٹاسک میں اے ایس پی احمد نصر اللہ ملک اور ایس ایچ او نواں کوٹ رفیع اللہ خان، ایس ایچ او ملت پارک سمن آباد، جبکہ ایس ایچ او اقبال ٹاؤن اشفاق احمد خان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ ایس پی کی جانب سے انعامات دینے کا مقصد پولیس ٹیم نے چند گھنٹوں میں نواں کوٹ سے اغوا ہونے والی بچی کو بازیاب اور ملزم کی گرفتاری تھا۔ وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی اقبال ٹاؤن زنیر احمد چیمہ کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کی جان و مال عزت کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اچھی کارکردگی پر اہلکاروں کی خدمات کو سراہا جانا ان کا حق ہے۔ NA-119 اور PP-149 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ PP-149 کی یونین کونسل 156 میں شہزاد بخش، اسد بٹ اور وسیم ڈاٹ نے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا۔ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم میں سینئر لیگی رہنما اور امیدوار MNA شیخ رحیل اسکر نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ NA-119 اور PP-149 میں مریم نواز اور عبدالعلیم خان شاندار کامیابی حاصل کریں گے۔ NA-119 کے جو علاقے میرے حلقے میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 8 فروری کو شیر اور رکاب پر مہر لگا کر مریم نواز اور عبدالعلیم خان کو کامیاب کروائیں گے۔ لاہور منصورہ میں معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر صفیہ افضال، حاجی پرویز پہلوان، نوید کیانی اور شیر افضال تور نے لیگی امیدوار ملک سیف الملوک کھوکھر کے حق میں جلسے کا اہتمام کیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز احمد ریاض بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ 8 فروری کے انتخابات میں گنتی کے دن باقی، لیگی امیدواروں نے کمر کس لی۔ لاہور کے علاقہ منصورہ بازار میں حاجی پرویز پہلوان، نوید کیانی، حاجی جاوید یوسف، شیر افضال تور، چودھری لطیف، ڈاکٹر صفیہ افضال کی جانب سے NA-126 کے لیگی امیدوار ملک سیف الملوک کھوکھر کے حق میں جلسے کا اہتمام۔ لیگی امیدوار کا استقبال آتش بازی، پھولوں اور ہاروں سے کیا گیا۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ میں صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کرنے جا رہا، آج کی ینگ جنریشن کام پوچھنا چاہیے جو بلدیاتی یا آج کل جو نمائندے آ رہے ہیں آپ کے پاس الیکشن کے لیے، ان سے پوچھئے کیا کیا آپ نے ایجوکیشن کے لیے، 2 ہی سوال کریں، ڈیولپمنٹ کو چھوڑے، آپ نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، میں صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کرنے جا رہا، میں ہیلتھ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کے بھائی افضل کھوکھر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 4 ہاسپٹل دیے، میں نے اپنے حلقہ کے اندر
मारूफ कायना कॉलेजेस डॉक्टर सफिया अफजाल ने मलक सैफुल मलूक खोकर की कामयाबियों का सिलसिले को उनकी अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। मलिक सैफ साहब को इसी हल्का से हम लोग जो है इलेक्शन जो है जितवाते हैं। पहला आगाज मलिक सैफ साहब को 97 में एज ए काउंसलर हम लोगों ने जो है यहाँ से इफ्ताह किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मलिक सैफ साहब जो हैं वो अपने बलबूते पे हर इलेक्शन में कामयाब होते आए हैं और इंशाल्लाह इस साल भी हम लोग हाजी परवेज पहलवान ने बताया कि मलक सैफुल मलूक खोकर हर जायज काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जलसा था इधर भरपूर दोस्तों ने, अहले महल्ला ने, अहले इलाका ने बड़ी दिल खोल के मोहब्बत का इजहार किया है। इस इलाके का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह मलक साहब पहले भी हमारे साथ रहे हैं। हर तरह की मुश्किल में कामों में भरपूर हिस्सा वो लेते हैं। चेयरमैन यूसी 112 नवीद कयानी ने लोगों की बड़ी तादाद की जलसे में शिरकत को नून लीग की कामयाबी गर्दाना। मुस्लिम लीग नून के लिए MNA अफजल सैफुल मलूक खोखर साहब के लिए और MPA सैफ अयूब खोखर साहब की कैंपेन का हिस्सा था और लोगों का आपने जमे गफीर और लोगों का जज्बा देख लिया कि नून लीग के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के कामों के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए लोग कैसे इकट्ठे हुए हैं। हाजी जावेद यूसुफ ने वहाँ आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब MNA के लिए वो हमारे हल्के में 97 से सियासत कर रहे हैं। उनके बेटे हैं फैसल अयूब खोखर साहब, वो MPA के लिए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि CTO लाहौर अबारा अतहर के हुक्म पर मसरूफ और अहम शाहराहों पर वाक़िया स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए ट्रैफिक स्काउट्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक इब्तदाई मरहले में स्कूल गार्ड्स और हेल्पर्स को बुनियादी ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी जाएगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के सर्कल अफसरान की तरफ से 100 से ज्यादा स्कूल्स इंतजामिया से मुलाकात की गई, जबकि गार्ड्स और हेल्पर्स में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के बैचेस और स्लैशेस तकसीम किए गए। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना था कि ट्रैफिक स्काउट्स प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। 1 फरवरी से तलबा तालिबात को ट्रैफिक स्काउट्स प्रोग्राम के तहत शामिल किया जाएगा। ट्रैफिक स्काउट्स अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देंगे। हमारा अतर का मजीद कहना था कि ट्रैफिक स्काउट्स की तामीराती मुनज़्ज़म ट्रैफिक सिस्टम में मजीद बेहतरी आएगी। ट्रैफिक स्काउट्स तलबा तालिबात को तारीफी असनाद और इम्तिहान में इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे। तलबा तालिबात में ट्रैफिक शऊर को उजागर करने से कानून पसंद माशरे की बुनियाद मुस्तहकम होगी। ट्रैफिक मसाइल के खात्मे और मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए अवामी हलकों का ताउन बेहद जरूरी है। ट्रैफिक स्काउट्स रज़ाकाराना तौर पर स्कूल टाइम और छुट्टी के वक्त ट्रैफिक वार्ड्स की मदद करेंगे। ट्रैफिक स्काउट्स तलबा को सड़क पार करवाए और स्कूल के बाहर रिंग और डबल पार्किंग खत्म करवाने में मदद फराहम करेंगे। डायरेक्टर जनरल महकमा बहबूद आबादी पंजाब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPIF समन राय की सरबराही में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर PWD डॉक्टर जुबैदा, जनरल मैनेजर ग्रांट आमिना अक्षीद, मैनेजर M&E इमरान अहमद, मैनेजर फाइनेंस फहीम अख्तर, मैनेजर HR जवाद खान की शिरकत। छोटे खानदान की अहमियत और अफादियत को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। डायरेक्टर जनरल महकमा बहबूद आबादी समन राय, छोटे खानदान के हवाले से महकमा बहबूद आबादी और PPIF के मनसूबा जात सूबा भर में कामयाबी से जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPIF ने कहा, जल्द वसी पैमाने पर एक सेमिनार के इनेकाद का एहतमाम किया जाएगा। सेमिनार में हुकूमत पंजाब की आबादी में कंट्रोल और खुशहाल खानदान बारे इक़दामात और कामयाबी के हवाले से आगाही फराहम की जाएगी। अब्दुल अलीम खान की शादरा में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। साबिक सूबाई वज़रा, साबिक अरकान असम्बली, मारूफ सियासी शख्सियात अब्दुल अलीम खान के हमरा रैली में शरीक हुए। रैली शादरा मोड़ से काला खताई रोड, बाजवा अस्पताल और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई अमामिया कॉलोनी इख्तिताम पजीर हो गई। शहरों से एक दूसरे पर फूल निशावर किए गए। NA 117 शादरा में अब्दुल अलीम खान का शानदार खैर मकदम किया गया। NA 117 के उम्मीदवार का मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात मियां जुनैद जुल्फिकार का वालिहाना इस्तकबाल सोने का ताज पहना कर किया गया। शादरा के अवाम की तरफ से अब्दुल अलीम खान को इंतखाबी निशान उकाब का तोहफा भी दिया गया। अब्दुल अलीम खान का उकाब को बाजू पर बिठाकर शहरियों से खिताब करते हुए कहना था कि उकाब हमारा इंतखाबी निशान है और नौजवान नस्ल के लिए मुकाबले का खास पैगाम है। 8 फरवरी को NA 117 को शाहीन की तरह बुलंद परवास का तोहफा मिलेगा। शादरा के अवाम की पेशराई पर शुक्र गुजार हूँ। मेहनत से हक अदा करेंगे। इलाके की तरक्की अब हम पर फर्ज है। हर घर को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देंगे। NA 117 के सूबाई हल्के PP 145 में ज्यादा तरक्की की जरूरत है। शादरा में तालीम, सेहत, शहरी सहूलतों के फकदान का खात्मा करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास हुआ। इजलास में काबीना ने जारी तरक्याती मनसूबों और खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। काबीना ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा अजरा की मंजूरी भी दे दी। आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास हुआ। इजलास में काबीना ने जारी तरक्याती मंसूबों और खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा अजरा की मंजूरी भी दे दी है। आपको एक बार फिर बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास हुआ। इजलास में काबीना ने जारी तरक्याती मंसूबों और खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा अजरा की मंजूरी भी दे दी है। आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास हुआ। इजलास में काबीना ने जारी तरक्याती मंसूबों और खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा अजरा की मंजूरी भी दे दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास हुआ। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक के हुक्म पर लाहौर में अगवा बराए तावान सेल की बड़ी कार्रवाई। हीर के इलाके से अगवा होने वाला 4 माह का बच्चा अल्लादिता बाजियाब करवा लिया गया। मगवी अल्लादिता को चंद हफ्ते कबल इलाका हेर से अगवा किया गया था। मगवी अल्लादिता को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर 2 मुल्जिमान इमरान और शुमाइला बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP मियां अंजुम तौकीर के मुताबिक मुल्जिमान मुकदमा हज़ा में इश्तिहारी भी हैं और पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर बुरसा के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान को पेशावराना सलाहियतों जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी जानिब इंस्पेक्टर आतिफ और ASI बनियामीन का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की तरफ से DSP के स्टाफ मियां अंजुम तौकीर और उनकी टीम को शाबाश और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की काविशों से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इब्तदाई तौर पर महकमा तवानाई की सिफारिश पर नेस्पाक के साथ बातचीत हो रही है। नेस्पाक के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद 3 माह के अंदर स्टडी मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू हो जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के डिपो, स्टेबलिंग यार्ड और तमाम स्टेशंस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए सालाना 3 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। सानेहा 9 मई जिना हाउस हमला केस की अहम इश्तिहारी मुल्जिम हमाद अजहर की लाहौर में मौजूदगी की इत्तला। पुलिस के मौका पर पहुंचने पर मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने शेराकोट के इलाके जाफरिया कॉलोनी में छापा मारकर हमाद अजहर को पनाह देने वाले 2 मुल्जिमान बाकिर और इलियास को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इश्तिहारी मुल्जिम हमाद अजहर कैसे फरार हो गया और सारा मामला क्या है, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, सानिया 9 मई जिना हाउस हमला केस के अहम इश्तिहारी मुल्जिम हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए शेराकोट पुलिस ने जब शेराकोट के इलाका में छापा मारा तो वहां से 2 मुल्जमान ने बाकायदा तौर पर FIR के मुताबिक, जिस तरह से बताया जा रहा था कि एक बाकर और एक मुल्जिम अलियास, जिसने जो है वो हमाद अजहर को वहां से शोर शराबा करके फरार करवा दिया, जबकि पुलिस ने दोनों उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं बताता चलूं कि अगर देखा जाए तो सरवर रोड थाना, जो कि जहां पर ये इश्तिहारी थे, और इसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका 96 बड़ा जो है वो 23 जो है वो लगाया गया था मुकदमा नंबर। और इसमें जो दफात की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी इसके अंदर दफात भी लगाई गई हैं, जिसमें 7ATA का जुर्म भी शामिल है। और बाकायदा ये भी इतला मिली थी पुलिस को कि अभी इस वक्त जो है वो हमाद अजहर शेराकोट के इलाका में मौजूद हैं। जुर्म के हवाले से इनके ऊपर जो है वो थाना सरवर रोड में 7ATA का मुकदमा दर्ज है। उसमें 302, 324, 395, 440, 492, 427, 353, 186, 290 और 291 समेत 120 भी, जबकि
22 पाइप जो है वो 225B भी लगाई गई है। एक इंतहाई खतरनाक जो है वो मुलजिम करार दिया गया है और बाकायदा इश्तिहारी करवा दिया गया था। और इसकी गिरफ्तारी के लिए शेराकोट पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां से पहले पर ही मौजूद जो है अफराद ने शोर शराबा देखकर पुलिस को कर दिया और हमाद अजहर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बड़ी कोशिश की गिरफ्तार करने की, लेकिन ताहाल वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और फरार करवाने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 216 का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्योंकि 216 की तारीफ ये है, किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को अगर आप गिरफ्तार करने के लिए जाएं और वो वहां पर मौजूद हो, जिस घर के अंदर मौजूद होगा, जिस प्लाट के अंदर मौजूद होगा, और उसको पनाह देने का मुकदमा बाकायदा तौर पर उसके ऊपर दर्ज किया जाएगा। और 216 का मुकदमा अलियास और बाकर के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। हमाद अजहर जो थे वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।